Hello everyone, I am Dr. Chetna Srivastav, retired professor of botany from Bhopal. Today I am going to present here morphology of stamens and evolutionary trends. Stamen is a male reproductive organ which is also known as microsporophyll. In singular number we can say it is stamen, and in plural number stamens are known as androecium, or male reproductive organ is known as androecium. This slide is showing various plant species bearing different kinds of stamens, which are different in their number and their filament and anther structures. Now I am coming on the topic morphology of stamen. To study the morphology of stamen, we should prepare a synopsis, and following points should be included in the synopsis. First, introduction, definition, morphology of primitive stamen, evolution of stamen, conclusion, and references. This slide is showing introduction of stamens. In angiosperms, reproductive organ is a flower, where the flower bear male sex organs, stamen, and female sex organ, carpel. The stamen is an elongated filamentous structure which is differentiated into connective, anther, and filament. Primitively, it was known as microsporophyll because this was leafy structure in primitive angiospermic plants. Primitive stamens are leaf-like structures which bear microsporangia on the adaxial or abaxial surface of the microsporophyll. There was no differentiation of filament, anther, and connective. तो इंट्रोडक्शन में हमें ये बताना होगा कि एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फ्लावर होता है जो कि सेक्स ऑर्गन के रूप में मेल सेक्स ऑर्गन स्टैमेन बियर करता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पल बियर करता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन स्टैमेन जो प्रेजेंट एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स हैं उनमें एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये स्टैमेंस लीफी स्ट्रक्चर्स थे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अपने डॉर्सल या वेंट्रल सरफेस पर पेयर ऑफ स्पोरेंजिया बेयर करते थे, मिडरिप पर या मार्जिन पर, इसलिए इनको माइक्रोस्पोरोफिल कहा गया था। प्रिमिटिव स्टैमेंस यानी प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में जो स्टैमेंस थे वो लीफी थे, लैमिना लाइक थे, और उस लैमिना में मिडरिप के दोनों ओर पेयर ऑफ स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते थे। इन प्रिमिटिव स्टैमेंस में एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट का डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता था, बल्कि माइक्रोस्पोरेंजिया लैमिना पर एम्बेडेड दिखाई देती थी। Now, the definition of stamen. The stamen is a male sex organ in angiosperm which produces microspores or pollen grains in its microsporangia within the anther. Microspore is the first unit of male gametophyte which produces male gamete. तो अगर आप स्टैमेन की परिभाषा देते हैं तो इस प्रकार आप बोलेंगे या इस प्रकार आप लिखेंगे कि स्टैमेन एक मेल सेक्स ऑर्गन है जो कि माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन के रूप में। ये माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया में फॉर्म होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट स्टैमेन के एंथर में होता है, और माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट यूनिट है। Now, morphology of stamen. A typical stamen consists of two parts.
First, proximal sterile filament, and second, distal fertile part. The anther consists of microsporangia, and a sterile tissue between the sporangia is known as connective. And the connective is a strip of sterile tissues that lies between pair of sporangia. This slide is showing primitive type of stamens. Here this flower is magnolia flower, where the stamens, indefinite number of stamens, are spirally arranged in a spirocyclic manner, on the thalamus. And these stamens are flattened lamina-like, bears pair of sporangia regia on the dorsal surface of the adaxial surface of the leafy lamina-like structure. And here you are seeing the nymphia flower, where the stamens are also leaf-like. आप देख रहे हैं, this is leafy structure which bear pair of sporangia at the top of the microsporophyll. And this is primitive type of flower. Nymphia flower is also primitive type of flower, where the number of stamens are indefinite, and stamens are leafy, which bear long elongated microsporangia anthers on the abaxial surface of the microsporophyll. Now this diagram is showing morphology of stamen. Here the primitive type of stamens you are seeing here. This lamina like broad lamina like structure which bear pair of sporangia on its margin, and midrib you are seeing this midrib like structure, and there is no differentiation between connective, filament and anther. And this is advanced type of stamen, where you are seeing here a filament, and they are anther lobes. And anther lobes bear pair of each anther lobe bear one pair of sporangia, and sterile tissue connective present between these two lobes at the base of the anther. Now this slide is telling you about primitive stamen. The primitive stamen has no distinction between filament and anther. The most primitive type of stamen in living angiosperms found in woody ranels. Woody ranels means tree-like ranels plant. Ranels order के plants. These are the broad leaf-like organs with weak or without distinction between fertile and sterile part. The sporangia are born near the center of the sporophyll on the abaxial side in Degeneraceae, Anonaceae and Hemitendraceae, and on the adaxial side in Astrobalia and Magnolia. तो मैग्नोलिया और एस्ट्रोबेलिया में आपने देखा कि ये एडेक्सियल सरफेस पर लगे हुए होते हैं स्पोरेंजिया, जबकि एनोनेसी में, हिमेटेंड्रेसी में, डिजेनेरेसी में ये एबेक्सियल साइड पर लगे हुए होते हैं स्पोरेंजिया. तो इस प्रकार हम प्रिमिटिव स्टेमस में देखते हैं कि प्रिमिटिव स्टेमस एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके डॉर्सल अथवा वेंट्रल सरफेस पर मिडरिप के दोनों ओर या एपेक्स के पास मार्जिन, लीफी मार्जिन पर पेयर ऑफ स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं. ये खास तौर से वुडी रैनल्स ग्रुप में देखने को मिलते हैं. वुडी रैनल्स में आपको लीफी स्टेमस देखने को मिलते हैं. तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है stamens का. Now this slide is presenting here primitive type of stamens which belongs to the order Ranels. Here you are seeing this Astrobalia. In Astrobalia, this is leafy structure where there is no distinction between anther, connective and filament. Here you are seeing a broad lamina and a midrib and a pair of sporangia present on both sides of the midrib. Then this is Hematendra stamen. Here also it is also looking like leafy structure. Pair of sporangia are present on both sides of the midrib. And this is Degeneria stamen. This is Magnolia stamen. And here Magnolia species showing leafy stamen.
and this is Magnolia humeri. This is Magnolia species, Magnolia nitida, showing marginal sporangia on the leafy structure. And here you are also seeing the sporangia present on the margin of the leafy lamina. Then Magnoliaceae, showing leafy structure of the stamen. And this is also Michaelia fuscata, showing leafy stamen. Then Magnolia species showing leafy stamen, where the microsporangia are present on the top of the microsporophyll, which are very close to the midrib. So this slide is showing totally primitive type of structure of stamens, where the structure is leaf-like, yani appearance is leaf-like, and microsporangia, which now become anther lobes, are present on near the midrib or near the margins, on the dorsal surface or on the ventral surface. Now, this slide is showing evolutionary trends in stamens. तो evolutionary trends क्या है कि gradually जो leafy lamina है वो narrow होता जाता है, उसकी marginal growth कम होने लगती है, reduce होने लगती है, जिसके कारण midrib में मौजूद जो midrib में मौजूद microsporangia हैं जो gradually anther lobe में convert होते हैं और वो अब मार्जिनल पोजीशन पर दिखाई देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिन की ग्रोथ रुक गई है और लैमिना चौड़ा होने के बजाय नैरो हो गया है। तो इस तरह से ये ग्रेजुअली आप यहाँ पे देख रहे हैं बैलियोलम हैप्लोपस एंड यूपोमेशिया लाउरिना एंड हेलीब्रेंडिया में आप एंथर्स को देख रहे हैं टॉप पर। ये लीफी लैमिना और नैरो हो गया है और उसके बीच में स्ट्राइल टिश्यू के रूप में प्रेजेंट है। फिर यहाँ आप देख रहे हैं डिस्कैनिया एंड लैक्टोरिस, ग्रेजुअल किस तरह से इवोल्यूशन होता गया है। ये क्लोरेंथस ग्लैबर एंड देन सिरेटोफिलम एंड मैग्नोलिशिया, वेयर द ये लीफी स्टैमेन बिकम ग्रेजुअली नैरो एंड microsporangia reach to the margin, their lamina becomes narrow and microsporangia reached at the top of the lamina. तो इस तरह से ये इवोल्यूशनरी कंडीशंस दिखाई देती हैं। इवोल्यूशन के दौरान ये देखा गया कि लैमिना ग्रेजुअली नैरो होता गया है और जो इसके स्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, इनकी पोजीशन मिडरिब के पास से मार्जिन की ओर रही और मार्जिन के बाद ये ऊपर टॉप पर पहुंचते गए और फाइनली ये इतने क्लोज हो गए कि इनमें जो स्ट्राइल टिश्यू था लैमिना का वो बहुत नैरो स्ट्रिप के रूप में बचा और इस नैरो स्ट्रिप को ही कनेक्टिव कहते हैं। और आगे और जब इवोल्यूशन हुआ तो कनेक्टिव की पोजीशन अलग अलग स्टेमेंस में हमको अलग अलग तरह से देखने को मिली। ये एग्जांपल आपको मॉडिफिकेशन का कैल्दा में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर लैमिना का वह पार्ट जो कि स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में था किस तरह से ग्रेजुअली नैरो हुआ है और एक पतली स्टेराइल स्ट्रिप के रूप में प्रेजेंट है जो बाद में कनेक्टिव कहलाता है। तो कनेक्टिव की पोजीशन अभी आपको कैसे दिख रही है कि माइक्रोस्पोरेंजिया की पूरी लंबाई में फैली हुई है नीचे से लेके ऊपर तक। ग्रेजुअली और डेवलपमेंट होगा तो कनेक्टिव की पोजीशन बेस पर हो जाएगी तो बेसी फिक्स्ड हो जाएगा, डॉर्सल सरफेस पर हो जाएगी तो डॉर्सी फिक्स्ड हो जाएगा और अगर कनेक्टिव इसके एंथर के टिप से लेकर बेस तक फैली हुई होगी तो एडेनेट एंथर कहलाएगा। तो इस तरह से ग्रेजुअली जो लैमिना का स्ट्रक्चर है वो नैरो हुआ है, स्पोरेंजिया की पोजीशन मिडरिब से मार्जिन और मार्जिन से टॉप पर पहुंचती गई है, टिप पर पहुंचती गई है, जिसके कारण एक फिलामेंटस स्टेमन्स का डेवलपमेंट हुआ है। Now this slide is showing evolution. Laminar stamens with semi-laminar form occur in the primitive families like Ceratophyllaceae, Ladyjabalaceae, U.P.S.C, Lactoridaceae and Nymphaceae. During specialization of the simple laminar stamen, there has been reduction of sterile tissues.
मीन्स जो लैमिना का स्टेराइल टिश्यू है उसमें रिडक्शन हुआ है. With retraction of the marginal areas, the lamina has become progressively narrowed. मार्जिनल एरिया में मार्जिनल ग्रोथ रुकने के कारण, कम होने के कारण ग्रेजुअली जो लैमिना है वो नैरो होने लगा, नैरो हो गया. एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट बिकेम फिलामेंटस. द मीडियल सेक्शन विद द स्पोरेंजिया एंड डिस्टल पार्ट बिकेम द एंथर. In the anther, the midvein region formed the connective and the sterile distal part of the appendages. तो जैसा मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया कि इवोल्यूशन के दौरान लीफी स्टैमेन का लैमिना नैरो हुआ है. क्यों? क्योंकि जो उसके मार्जिन से मार्जिनल मेरिस्टेम की एक्टिविटी कम हुई है, जिसके कारण लैमिना का चौड़ा होना बंद हुआ, लैमिना नैरो हुआ. और स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया की पोजीशन मिडरिप के पास से हटकर मार्जिन पर पहुंच गई. क्यों? क्योंकि जब मार्जिन में ग्रोथ नहीं हो रही है तो मार्जिन उसकी नैरो हो गई और स्पोरेंजिया की पोजीशन मार्जिनल हुई. इवोल्यूशन के अगले स्टेप पर स्पोरेंजिया की पोजीशन लीफी लैमिना के टिप पर पहुंच गई और लैमिना नीचे की तरफ स्ट्राइल फिलामेंट के रूप में रहा. अब स्पोरेंजिया के बीच में जो स्टेराइल टिश्यू था वो ग्रेजुअली नैरो होता गया. शुरू में वाइट था या स्टार्टिंग में, बाद में ग्रेजुअली नैरो होता गया और एक पतली स्ट्रिप के रूप में रहा जो कि कनेक्टिव के रूप में काम करने लगा. तो शुरुआती तौर पर देखा गया कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो कनेक्टिव के माइक्रोस्पोरेंजिया में कनेक्टिव टिप से बेस तक फैली हुई थी, जिसके कारण हमने स्टैमेंस को एडेनेट कहा, एंथर्स को एडेनेट कहा. बाद में ये टिप जब एंथर के बेस पर प्रेजेंट होती है तो उसको बेसिफिक्स कहते हैं. एंथर के डॉर्सल सरफेस से जुड़ी होती है तो उसको डॉर्सिफिक्स कहते हैं. जब एंथर के बिल्कुल पॉइंट मिडिल पॉइंट पर जुड़ी होती है, वो एंथर दोनों तरफ हिल डुल सकता है, तो इस प्रकार के एंथर को वर्सेटाइल एंथर कहते हैं. यानी कनेक्टिव के इस नेचर को वर्सेटाइल कहते हैं. The connective may be divided longitudinally and separation extends down into the filament as in ulnus, corylus, ostrea and each lateral half with anther one lobe. In some primitive families, connective forms major part of the anther. Two sporangia form an anther. In advanced families, connective is very small, slender, median axis. A series of progressive reduction exists from the massive connective from Magnoliaceae, Procodendroaceae and Tetracentraceae to Poaceae. A distal appendage of connective is found in primitive families like Magnoliaceae, Nymphaceae, Cercidiphyllaceae. Early stages in specialization of anther are seen in stamens where the connective is prominent and the anther and filament merge. Filaments are flattened. तो कनेक्टिव इनिशियली हम देखते हैं प्रिमिटिव फैमिलीज में कि ये डिवाइड होकर, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होकर दोनों स्पोरेंजिया को डिफरेंटली जाती हैं और एंथर के दो पार्ट बनाती हैं, दो लोब्स बनाती हैं. और इन सम प्रिमिटिव फैमिलीज कनेक्टिव फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द एंथर. प्रिमिटिव फैमिलीज में कनेक्टिव जो है एंथर के टिप से लेकर बेस तक फैली हुई होती हैं. और जैसे जैसे हम एडवांस फैमिलीज की तरफ जाते हैं, कनेक्टिव का आकार छोटा होता गया है, स्मॉल होती गई है और डेलिकेट होती गया, स्ट्रक्चर उसका काफी स्मॉल होता गया है एडवांस फैमिलीज में. Early stages in specialization of anther are seen in stamens where the connective is prominent and anther and filament merge. Filaments are flattened. Now filament of the stamen. The filament ranges from broad and winged to terete and thread-like and from short to long. तो एंथर के स्टैमेंस के फिलामेंट के दौरान हमने देखा है कि फिलामेंट जो है वो ब्रॉड, विंग्ड, टेरेट थे प्रिमिटिव टाइप में और धीरे धीरे ये थ्रेड लाइक, शॉर्ट टू लॉन्ग होते गए. यानी शॉर्ट फिलामेंट से ये थ्रेड लाइक और लंबे होते गए.
नेक्स्ट पॉइंट, ब्रॉडर एंड शॉर्टर टाइप फिलामेंट्स आर मोर प्रिमिटिव। ऐसे फिलामेंट जो लीफी चपटे थे, स्मॉल थे, वो कैसे थे? प्रिमिटिव थे। एंथर फिलामेंट रिलेशनशिप शो वेरियस पैटर्न फ्रॉम इनेट, एडेनेट, बेसिफिक्स टू डॉर्सिफिक्स्ड एंड वर्सेटाइल। इनेट मीन्स कि लीफी लैमिना में मिड्रिप के दोनों ओर जब माइक्रोस्पोरेंजिया एम्बेडेड होती हैं, अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो सेपरेट नहीं होती हैं, डिफरेंशिएट नहीं की जा सकती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? इनेट टाइप कहते हैं। एडेनेट मतलब जब कनेक्टिव एंथर के टिप से बेस तक पतली स्टेराइल स्ट्रिप के रूप में प्रेजेंट होती है, तो दैट इज एडेनेट। बेसिफिक्स्ड मतलब एंथर लोब्स के बेस पर कनेक्टिव अटैच्ड हो, फिलामेंट कनेक्टिव के द्वारा अटैच्ड हो। और डॉर्सिफिक्स्ड मतलब फिलामेंट जब एंथर के डॉर्सल सरफेस पर कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा हुआ हो। एंड वर्सेटाइल मीन्स जब कनेक्टिव एंथर के मिड पॉइंट पर हो और एंथर फिलामेंट पर दोनों तरफ वर्सेटाइल हो, झूलता हुआ हो, तो उस कंडीशन को वर्सेटाइल कहते हैं। बेसिफिक्स्ड आर प्रिमिटिव, डॉर्सिफिक्स्ड एंड वर्सेटाइल आर एडवांस। तो ये कहा गया है कि बेसिफिक्स्ड पैटर्न जो है एंथर का, वो प्रिमिटिव है, डॉर्सिफिक्स्ड एंड वर्सेटाइल जो है एडवांस्ड है। In primitive stamens, there is no distinction of anther and filament. प्रिमिटिव स्टेमन्स में एंथर और फिलामेंट को डिफरेंशिएट अलग अलग नहीं देखा जा सकता था। फिलामेंट इज क्लियरली कंटिन्यूअस बिटवीन स्पोरेंजिया। द एंथर कॉल्ड इनेट टाइप ऑफ एंथर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो एंथर थे वो प्रिमिटिव स्टेमन के लीफी स्ट्रक्चर में अलग से डिफरेंशिएट नहीं किए जा सकते थे, उसमें एम्बेडेड रहते थे। If connective is less prominent and differ from the filament tip, the anther is called basifixed. Now anther and filament connecting patterns. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एंथर और फिलामेंट किस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्या पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इन प्रिमिटिव स्टेमन्स देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. Filament is clearly continuous between sporangia and anther called innate type. जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने बताया कि जब लैमिना लाइक माइक्रोस्पोरोफिल या स्टेमन है, तो उसमें फिलामेंट और कनेक्टिव और एंथर के बीच डिस्टिंक्शन नहीं होता, बल्कि माइक्रोस्पोरेंजिया लैमिना में ही इम्बेडेड होती हैं. दैट मीन्स इनेट टाइप ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर एंड filament. Where the anther is attached laterally, the distal part of the filament is called adenate. जहां पर एंथर कनेक्टिव से लेटरली अटैच्ड होता है, तो और उसके डिस्टल से पार्ट से लेके प्रॉक्सिमल एंड पूरी लंबाई में प्रेजेंट होता है, तो इस तरह के कनेक्शन को एडेनेट कहते हैं. Then if connective is less prominent and differ from filament tip present at the base of the anther, The anther is called as basifix. तो आपको ये मालूम होगा कि जब कनेक्टिव एंथर लोब के बेस पर नीचे फिलामेंट और एंथर के जुड़ने के स्थान पर प्रेजेंट होती है, तो उसे बेसिफिक्स कहते हैं. Where the filament is attached on the broad side of the anther is called dorsifix. जब एंथर की डॉर्सल साइड पर कनेक्टिव अटैच्ड होती है या फिलामेंट कनेक्टिव के द्वारा अटैच्ड होता है, तो उस प्रकार के कंडीशन को डॉर्सिफिक्स कहते हैं. When the tip of the filament is delicate and the anther is free to turn at the point of attachment is called versatile. मीन्स एंथर जो है, एंथर और फिलामेंट के बीच जो कनेक्शन है वो कैसा है? एक डेलिकेट पतली कनेक्टिव के थ्रू उसके मिडिल पॉइंट पर है और एंथर दोनों तरफ हिल डुल सकता है बराबर से. जिस कंडीशन को हम कहते हैं वर्सेटाइल. Now we will discuss about anther and microsporangia. Position first, you should know position of sporangia. In position on the sporophyll, the microsporangia of the typical anther are submarginal. Submarginal means
मार्जिनल सेल्स को छोड़कर नेक्स्ट लेयर की जो सेल्स होती हैं वहां पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। इन द प्रिमिटिव स्टेमस स्पोरेंजिया आर लैमाइनर, यानी प्रिमिटिव स्टेमस में स्पोरेंजिया लैमिना पर डेवलप होती हैं। Primitively, the sporangia were deeply embedded in the tissues of the sporophyll. Example, Dysgeneria, Michelia, Hematendra, and Ceratophyllum. In the specialization of the anther, progressive reduction and reorganization of striate tissues have freed the sporangia from the burial in the lamina by the formation of anther lobe. तो इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ कि लीफी लैमिना में जो एम्बेडेड स्पोरेंजिया थी वो ग्रेजुअली लैमिना के सरफेस टिश्यूज की ग्रोथ के कारण प्रोट्यूबरेंस के रूप में उभर कर आई, यानी धसे हुए फॉर्म से वो बाद में उभर कर डेवलप हुई और उन्होंने एंथर लोब का फॉर्मेशन किया। As the anther sac became strongly protuberant, means anther sac जो है उभार के रूप में डेवलप हो गया, and they were gradually freed from the connective until nearly free versatile anther. तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया लैमिना में धसी हुई थी, एम्बेडेड थी, वो लैमिना टिश्यूज की ग्रोथ के कारण उनकी पोजीशन ऊपर उभर कर आई, उठ कर आई और वो एक प्रोट्यूबरेंस के फॉर्म में फॉर्म हुई, जिसे आपने एंथर लोब के रूप में कहा, यानी उसकी स्पोरेंजियल वॉल मल्टीलेयर्ड हो गई। और ये जो एंथर लोब्स हैं बाद में कनेक्टिव के फॉर्मेशन के कारण और कनेक्टिव के बाइफर्केशन के कारण वो सेपरेट लोब के रूप में बन गए और वर्सेटाइल एंथर्स का फॉर्मेशन हुआ। Now anther and microsporangia. The number of sporangia in each anther. In the primitive angiosperms, stamens or microsporophyll bear two anthers, and each anther consists of two microsporangia, one pair of sporangia in each lateral half of the sporophyll. The two sporangiate unilocular anther bearing taxa are considered as more advanced. तो ये देखा गया कि जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स थे, टाइप थे, उसमें एंथर लोब्स बायलोब एंथर होते थे और ईच लोब टू माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करते थे, यानी टू लोब्स में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। किंतु एडवांस कंडीशन में क्या देखा गया कि जो एंथर लोब्स हैं वो यूनिलोकुलर हुए और यूनिलोकुलर एंथर लोब्स में 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट थी, यानी बाइस्पोरेंजिएट यूनिलोकुलर एंथर क्या कहलाए, एडवांस टाइप ऑफ एंथर्स कहलाए। फॉर्म ऑफ स्पोरेंजिया, द प्रिमिटिव स्पोरेंजियम वेयर स्लेंडर एंड elongate as seen in the more primitive families, जैसा कि आपने पुरानी स्लाइड्स में देखा है कि लंबी लंबी elongated cylindrical स्पोरेंजिया थी प्रिमिटिव फैमिलीज में। तो ये मोनोकॉट और डायकॉट दोनों में ही लॉन्ग सिलेंडर स्पोरेंजिया पाई जाती थी। किस रूप में, फॉर्म, इनका फॉर्म जो था लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म के रूप में था। तो ये प्रिमिटिव फैमिलीज में मिलती थी, चाहे वो मोनोकॉट्स हो या डायकॉट्स हो। ड्यूरिंग एडवांसमेंट इट हैज बीन प्रोग्रेसिवली शॉर्टेंड, जैसे जैसे विकास हुआ ये छोटी होती गई, एंड बिकेम हेमिस्फेरिकल एंड एंथर बिकेम ग्लोबोस। तो ये स्पोरेंजिया का शेप हेमिस्फेरिकल हुआ और फाइनली एंथर जो है ग्लोबोस फॉर्म में डेवलप हुए। इन लैमिनर स्टेमन्स द आउटर स्पोरेंजिया इज स्मॉलर देन द इनर स्पोरेंजिया विच इज नियरेस्ट टू द मिडरिब। तो आपने पुराने जो प्रिमिटिव फ्लावर स्टेमन्स के हमने डायग्राम्स आपको दिखाए हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि मिडरिब की तरफ वाला जो एंथर लोब है या स्पोरेंजिया है वो वाइडर है, बड़ा है, लॉन्ग है, एंड जो इससे दूर है वो कैसा है, स्मॉलर है। यानी इन लैमिनर स्टेमस आउटर स्पोरेंजिया इज स्मॉलर देन द इनर वन विच इज नियरेस्ट टू द मिडरिब। Now we will discuss about pollen sac, locule or theca. The sporangia of more primitive stamens are sunken in mesophyll, are wall-less, यानी जो स्पोरेंजिया थे वो मेसोफिल में धसे हुए थे लेकिन स्पोरेंजियल वॉल उसमें प्रेजेंट नहीं थी। With the reduction of lamina, the striate tissues around the sporogenous cells persist
where the protuberance are large and thick walled were added to form nearby regions the anther sac wall. तो कहने का मतलब है कि इनिशियली जो माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म हुए थे लैमाइनर स्टेमन में, उनमें स्पोरेंजियल वॉल प्रेजेंट नहीं थी, वॉललेस थे। बाद में लैमाइनर टिश्यूज की ओवरग्रोथ के कारण उनके चारों ओर एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर का या एंथर सैक वॉल का फॉर्मेशन हुआ। स्टेमेन्स ऑफ रानेल शो द नेकेड कैरेक्टर ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। तो रानेल्स, इससे आप समझ गए होंगे कि जो प्रिमिटिव रानेल्स ग्रुप है उसके स्टेमेन्स जो हैं वो नेकेड स्पोरोजिनस टिश्यू के होने को सपोर्ट करते हैं। Dithecus anther is complete anther with 4 sporangia is primitive। यानी जो डाइथिकस यानी बाइलोब्ड एंथर होते हैं वो कंप्लीट एंथर होते हैं और प्रिमिटिव टाइप होते हैं, जिनमें की 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, यानी ईच लोब बियर 1 पेयर ऑफ स्पोरेंजिया। एंथर विथ 2 lobes termed as dithecus and anther with 1 lobe termed as monothecus। Monothecus anther is usually a half anther with 2 sporangia. In Lamiaceae, half anther is abortive or absent, which is an advanced character. In highly specialized anthers, all 4 sporangia unite to form a one chamber, and the theca represents 4 sporangia. Example, calistrich and some cucurbits। तो कुछ कुकरबिट्स में और कैलिस्ट्रिचे में इस तरह का देखा जाता है कि चारों स्पोरेंजिया की जो वॉल है वो डिजेनरेट हो जाती हैं और वो चैम्बर जो है यूनिलोकुलर हो जाता है और यूनिलोकुलर दिखाई देने लगता है। ये इसकी एडवांस स्टेज है, यानी एडवांस टाइप ऑफ कैरेक्टर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एंथर फिलामेंट कनेक्शन। नाउ दिस स्लाइड इज शोइंग एंथर फिलामेंट कनेक्शन, where this is a leafy stamen and there is midrib and 1 pair of sporangia with 2 lobes are present just on both sides of the midrib. Then adennate, this is known as innate type of stamen, where the sporangia are developed on the inner side of the lamina and generally they were embedded on the lamina. This is adennate type of stamen, where the tip of the connective is started from the tip of the anther to the base of the anther, and connective present on whole length of the anther lobe. Then again this diagram is showing basic fixed condition, where the connective is present at the base of the anther lobe. This is connective, small connective. And now this diagram is showing dorsifixed condition. This is pair of anther lobes and bilobed anther, and the connective is attached on the dorsal surface of the anther. Next condition is versatile, where the connective is attached to the middle point of the anther lobe, and anther lobe can move on both sides of the filament. And this is discrete type of attachment, and this is divaricate, where the connective is divided into 2 branches and both anther lobes are separated, and the climax of division of connective is showing in Lamiaceae family in Salvia, where the connective where the anther lobes are present on the 2 different ends of the connective. This is abortive anther and this is fertile anther of the salvia, and this is appendiculate connective। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस स्टेमन में कि कनेक्टिव का टिप जो है एक पतला अपेंडेज फॉर्म कर रहा है फिलामेंटस, एंड दिस इज नोन एज appendiculate connective। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंथर जो है फिलामेंट के साथ कनेक्टिव के माध्यम से कितने तरह से जुड़ा हुआ होता है। इतने वेरिएशंस होते हैं, innate type, adennate type, basifix type, dorsifix type, versatile type, discrete type। यहाँ पर कनेक्टिव का डिवीजन शुरू हो गया है। अब डाइवरिकेट टाइप, यहाँ पर कनेक्टिव टोटली डिवाइड हो गए, एंथर लोब 2 अलग अलग पॉइंट पर प्रेजेंट है।
एंड दिस ट्रैक्टाइल टाइप, जिसमें कि एंथर का कनेक्टिव की एक ब्रांच लंबी, एक छोटी, एक एंथर लोब स्टेराइल, एक एंथर लोब फर्टाइल। तो काफी ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गई है यहाँ पर कनेक्टिव। ये एक एडवांस कैरेक्टर है, लैमिएसी फैमिली में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपने देखा अपेंडिकुलेट टाइप, यहाँ पर कनेक्टिव आगे एक लंबे अपेंडेज के रूप में, फिलामेंटस अपेंडेज के रूप में ग्रो कर गई है। दिस इज अपेंडिकुलेट टाइप। Now this slide is showing different kinds of flowers bearing different kinds of stamens. यहाँ पर आप वर्ल्ड स्टेमस, ये सोलोनेसी फैमिली का फ्लावर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड स्टेमस लगे हुए हैं, फिलामेंट छोटा है, एंथर लोब लॉन्ग है, और ये सब कैसे हैं, इंट्रॉर्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डायंथस का है, कैरियोफिलिएसी फैमिली का है। इसमें जो फिलामेंट है ये एंथर के डॉर्सल सरफेस से जुड़ा हुआ है, डॉर्सिफिस कंडीशन। ये लैमिएसी फैमिली का ऑसिमम का फ्लावर है, जिसमें आपको वर्सेटाइल कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैमेंस की यहाँ पर मैंने ये पिक्स आपके लिए शो की है। Now dehiscence of anther. On the basis of position of direction of dehiscence of anther are two types. Intrors, when the pollen is freed from the anther directly or obliquely inward in the flower. Intrors का मतलब है कि जब एंथर अंदर की तरफ फ्लावर के डेहिसेंस होते हैं और पोलन ग्रेन्स को अंदर की तरफ डेहिसेंस के द्वारा छोड़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंट्रॉर्स कंडीशन। एक्सट्रॉर्स कंडीशन यानी when the pollen freed towards the outer side of the flower, यानी abaxially, एडेक्सियली एंड एबेक्सियली। एडेक्सियली मीन्स एंट्रॉर्स यानी अंदर की तरफ डेहिसेंस हो रहा है, और एक्सट्रॉर्स मीन्स जब बाहर की तरफ डेहिसेंस हो रहा है। लेट्रॉर्स मीन्स व्हेन द पोलन ग्रेन्स pollen is shed laterally is called the लेट्रॉस, यानी लेटरल साइड में अगर वो pollen निकल रहा है, डेहिसेंस हो रहा है, तो that means लेट्रॉस। These terms have descriptive and taxonomic value and are morphologically significant. Now union of sporangia, sporangia का आपस में जुड़ना। In the primitive stamen, the sporangia lie close together in lateral pairs. In advanced stamens, they remain so or became closer together by reduction in intermediate laminar tissue. In many families, they unite laterally by breakdown of separating walls late in ontogeny as the pollen matures. यानी कुछ में क्या होता है कि ये जो है सेपरेशन वॉल के डिसॉल्व हो जाने पर, मैच्योरिटी के बाद जो स्पोरेंजिया हैं उनकी सेपरेशन वॉल डिसॉल्व हो जाती है, जिसके कारण ये आपस में यूनाइट हो जाते हैं। तो in many families they unite laterally by breakdown of separating walls late in ontogeny as the pollen matures. Now union of sporangia, you are seeing in this diagram where this is TS of anther lobe, where the pair of sporangia present on each anther, and each anther lobe, and in primitively they are separated by the sterile tissues, and after maturation the partition wall disorganize and that become unilocular, and all the microspores distributed in this locule. तो यहाँ पर आप ये इनका यूनियन ऑफ स्पोरेंजिया देख रहे हैं कि किस तरह से ऑन्टोजेनेटिकली स्टार्टिंग पॉइंट पे स्पोरेंजिया सेपरेट थी, जो मैच्योर होने के बाद में उनकी पार्टीशन वॉल के डीजनरेशन से वो यूनाइट हो गई हैं, और जो बायोलोकुलर स्ट्रक्चर था वो यूनिलोकुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। Now other evolutionary trends in stamen evolution. In primitive angiosperms, number of stamens are indefinite, are arranged spirally on the elongated thalamus axis. The thalamus gradually became reduced to short globose or disc-like. In some cases, it became concave. The spiral arrangement of stamen is considered primitive due to course of evolution. Whorled or fasciculated type of arrangement of stamens developed. The spiral arrangement found in primitive families just like Magnoliaceae, Winteraceae, Annonaceae, Nymphaceae, and the fasciculated stamens are found in Delaneaceae, Cactaceae, Peonia, tribe of Ranunculaceae and Bombaceae,
Fascicled or clustered nature of stamen has been considered as primitive character by many scientists. तो इस तरह से स्टेमन्स में जो और इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं वो क्या है कि जो प्रिमिटिव फ्लावर्स हैं उसमें नंबर ऑफ स्टेमन्स बहुत अधिक होते हैं, तो एक्चुअली वो थैलेमस पर स्पाइरली अरेंज होते हैं। जैसे जैसे उनका इवोल्यूशन हुआ नंबर्स उनके कम हुए और वो स्पाइरली अरेंज होने के बजाय अब वो स्पायरोसाइक्लिक कंडीशन में दिखाई देते हैं, और धीरे धीरे जब नंबर और अधिक कम हो जाता है तो स्टेमन्स का अरेंजमेंट साइक्लिक हो जाता है। इनिशियली ये सेपरेट रहते हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज में ये फेसिकुलेटेड यानी गुच्छे के रूप में डेवलप होते हैं। वैसे फेसिकुलेटेड स्टेमन्स को भी प्रिमिटिव कैरेक्टर में ही कंसीडर्ड किया गया है, और बाद में जब जो एडवांसमेंट हुआ है तो उसमें देखा है कि नंबर ऑफ स्टेमन्स रिड्यूस हो गया है काफी, और वो साइक्लिक अरेंजमेंट में है। लेस नंबर ऑफ स्टेमन्स इज जस्ट लाइक 5, 4, 2, 1 स्टेमन्स। जहां पर जितना अधिक रिड्यूस नंबर हुआ है ये माना जाता है कि ये उतनी एडवांस फैमिली एडवांसमेंट के दौरान नंबर ऑफ स्टेमन्स जो है वो रिड्यूस हुए हैं। साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स during evolution, number of stamens gradually reduce to few in number or only one, and their arrangement became spiral to spirocyclic, then cyclic. In cyclic arrangement, if stamens arranged in a single whorl are called as haplostaminous. If the stamens arranged in two whorls is called as diplostaminous. If the stamens are arranged in many whorls are called as polystaminous, जैसे कि डेल्फिनियम, एक्यूलिजिया, नैंडिना, and another obdiplostaminous condition is also found in angiosperms, where stamens of two whorls are arranged in alternate position. Outer whorl of stamens opposite to the petal and inner whorl of stamens opposite to the sepals. This condition is found in Zireniaceae, Rutaceae and Oxalidaceae. Now this slide is showing different kind of arrangement of stamens. Here spirally arranged stamens in magnolia. यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मैग्नोलिया फ्लावर में इंडेफिनिट नंबर ऑफ स्टेमन्स हैं जो कि थैलेमस पर स्पाइरली अरेंज्ड है। आर्जिमोन मैक्सिकाना ये स्पायरोसाइक्लिक अरेंजमेंट है, यहाँ पर कॉम्परेटिवली नंबर ऑफ स्टेमन्स कम हो गए हैं। देन स्पायरोसाइक्लिक अरेंजमेंट आप ये रैननकुलस में भी देख रहे हैं। रैननकुलस में भी लॉन्ग सिलिंड्रिकल इसमें स्पोरेंजिया है स्पोरोफिल के टर्मिनल एंड पर, जो कि प्रिमिटिव कैरेक्टर को शो करती है, और ये स्पायरोसाइक्लिक मैनर में अरेंज्ड है। सिट्रस में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टैमेंस हैं वो ग्रुप में है, ग्रुप में पाए जा रहे हैं, यानी कई कई स्टैमेंस के ग्रुप में हो, एक रिंग में अरेंज्ड है। फिर जिसको आप पॉलीडेल्फस कंडीशन भी कह सकते हैं। फिर यहाँ आप देख रहे हैं ये स्पीशीज है एकाइरेंथस की जिसमें साइक्लिक अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है स्टैमेंस का। तो इस तरह से अलग अलग फ्लावर्स में आपको स्टैमेंस की अरेंजमेंट की कंडीशन देख सकते हैं आप, जो उनके इवोल्यूशनरी ट्रेंड को भी शो करती है, यानी प्रिमिटिव से लेकर कैसे नए स्टैमेंस या नया एडवांसमेंट होता गया होगा, आप उनकी पोजीशन के आधार पर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Now reduction in number of whorl and stamens and anther. तो यहाँ पर आप सोलेनम स्पीशीज को देख रहे हैं। सोलेनम में आप देख रहे हैं कि 5 स्टेमन्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें एंथर लोब लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, elongated है, फिलामेंट शॉर्ट है और ये इंट्रॉर से अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। देन ऑसिमम स्पीशीज में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टेमन्स कम हो गए हैं, 4 हैं, डिडाइनेमस कंडीशन है। और देन यहाँ साल्विया में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टेमन्स 2 है जिसमें भी एक कनेक्टिव बाइफर्केटेड हो गई है, एक स्मॉल एंथर लोब है स्टेराइल एंड लार्ज एंथर लोब है फर्टाइल। इस डायग्राम में आप ज्यादा इसको क्लियर देख सकते हैं, ये साल्विया के ही स्टेमन का डायग्राम है जिसमें जिसका कनेक्टिव है वो कैसा है, डिवाइडेड है, डाइवरिकेटेड है, जिसके एक एंड पर फर्टाइल एंथर है, दूसरे एंड पर स्टेराइल पार्ट है, स्टेराइल लोब है। तो ग्रेजुअली इवोल्यूशन के दौरान हमने देखा कि स्टेमन्स में रिडक्शन हुआ, नंबर में रिडक्शन हुआ, उनके अरेंजमेंट में रिडक्शन हुआ, उनके एंथर लोब्स में रिडक्शन हुआ, नंबर ऑफ स्पोरेंजिया में रिडक्शन हुआ। Reduction in number of stamens. During evolutionary changes, beside the reduction in number of whorls of stamens, there occur in the reduction in number of stamen in the same whorl.
Loss of number in stamen occur due to reduction in size of flower and development of zygomorphy in flower. In family Acanthaceae and Scrophulariaceae, there have been seen a series of reduction in number of stamens and development of zygomorphy in various genera like Ruellia, Barlaria, Peristrophy in family Acanthaceae. इन स्क्रोफुलेरियसी लंडनबर्जिया स्ट्राइगा एंड मैजस एग्जाम्पल है जहां पर आप जैगोमॉर्फी का एवोल्यूशन भी देखेंगे और नंबर ऑफ स्टेमन्स की घटने की प्रक्रिया भी देखेंगे. Similar reduction in number occur in stamens fascicles ranges from 5 to 3. Now reduction in number of stamens. This slide is showing flowers of different kinds of flowers which showing reduction in number of stamens. In Ruellia you are seeing 4 stamens and where the 5th stamen is staminode, and these four stamens show didynamous condition. One pair of stamen are small and one pair of stamen are long. This is known as didynamous condition. In Barlaria you are seeing 2 stamens only, and the number of reduction in number of stamen is 2. In Peristrophy you are also seeing 2 stamens. In Salvia there is also 2 stamens. In Lindenbergia there is 2 pair of stamens, one didynamous condition. One pair is smaller stamens and one pair is longer stamen. तो इस तरह से आप देखते हैं कि स्टैमेंस की संख्या में भी रिडक्शन हुआ एवोल्यूशन के दौरान, स्टैमेंस के अरेंजमेंट की वर्ल में भी रिडक्शन हुआ एवोल्यूशन के दौरान, और उसके एंथर लोब्स में भी के नंबर्स में भी साइज में भी रिडक्शन हुआ. तो ग्रेजुअली एवोल्यूशन के दौरान मेल सेक्स ऑर्गन्स स्टैमेन में हम रिडक्शन की प्रक्रिया को देखते जा रहे हैं. Now free polyandrous stamens are primitive, then united cylindrous stamens. In course of evolution, fertile tissues become gradually reduced. Number of stamens can be reduced to only 1 in the most advanced taxa, and anther also reduced to single lobed fertile, and other lobe is sterile in Lamiaceae family. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है. तो इनके इवोल्यूशन में एक चीज और देखी गई है कि पॉलीएंड्रस स्टेमेंस प्रिमिटिव होते हैं और उनका जो ये यूनियन है, यानी जैसे जैसे स्टेमेंस आपस में फ्यूज होते हैं वो स्टेमेंस जो होते हैं एडवांस होते हैं. यानी पॉलीएंड्रस आर प्रिमिटिव एंड सिलेंड्रस आर एडवांस फीचर्स, एडवांस स्टेमेंस. Then cohesion in stamens. Fusion and adenation of stamen generally seen in many taxa of the angiosperm. फ्यूजन मीन्स कोनेशन, आपस में किस तरह से जुड़ते हैं. कोहिजन कैसे होता है. कोनेशन एंड कोहिजन टेक्स प्लेस बाय द फिलामेंट एंड एंथर. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एडल्फस. व्हेन द फिलामेंट ऑफ ऑल स्टेमेंस अटैच्ड इन वन बंडल इज कॉल्ड द मोनोडल्फस कंडीशन. दिस मोनोडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन मालवेसी फैमिली. आपने देखा होगा कि गुड़हल के फ्लावर में एक लंबी पॉलन ट्यूब होती है जिसमें बहुत सारे फिलामेंट से यूनिलोकुलर एंथर्स निकले हुए होते हैं, मोनोथीकस एंथर्स निकले हुए दिखाई देते हैं. तो ये इस कंडीशन को मोनोडल्फस कंडीशन कहते हैं. When filaments of stamens attached in 2 bundles of stamens are termed as diadelphous condition. ये कंडीशन आप पेपिलोनेसी फैमिली में देखते हैं. मटर जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे कि एक सिंगल स्टेमन होता है और 9 जो होते हैं एक बंच में जुड़े हुए होते हैं, यानी 2 बंडल्स में आपको स्टेमन्स दिखाई देते हैं, 9+1. This condition is called as diadelphous condition. Now रूटेसी फैमिली में आप पॉलीएडल्फस कंडीशन देखते हैं. पॉलीएडल्फस कंडीशन का मतलब है कि कई नंबर ऑफ स्टेमन्स अधिक है और वो कई बंडल्स बना रहे हैं, कई बंच बना रहे हैं. When filaments of stamens attached in many bundles are termed as polyadelphous condition, which is the common general character of Rutaceae family. And when the filaments are free and anthers attached with each other is called as syngenaceous condition. तो कंपोजिटिव फैमिली या एस्टरेसी फैमिली या सनफ्लावर फैमिली में आपने एक खासियत देखी होगी कि जहां पर एंथर्स जो है आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़े हुए होते हैं और फिलामेंट फ्री होते हैं. इस कंडीशन को सिंजेनेशियस कंडीशन कहते हैं. तो ये भी एक प्रकार का कोहेजन है. When all whole stamens attach together, anther and filament both is termed as synandrous condition.
मीन्स जब पूरा ही स्टेमन्स यानी सभी स्टेमन्स आपस में फिलामेंट और एंथर दोनों से कंप्लीटली जुड़े हुए हों, तो इस कंडीशन को सिन एंड्रस कंडीशन कहते हैं। सिन मतलब जुड़ना, एंड्रस मीन्स स्टेमन्स एंड एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम का आपस में जुड़ा हुआ होना कहलाता है सिनेंड्रस कंडीशन, जो कि कुकुरबिटेसी फैमिली का एक खास कैरेक्टर है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर स्लाइड में देखा कि स्टेमन्स में कोहिजन होता है। जो प्रिमिटिव स्टेमन्स थे वो फ्री स्टेमन्स थे, पॉलीएंड्रस थे, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ उसमें कोहिजन होता गया, और कोहिजन किस फॉर्म में हुआ, मोनोएडल्फस, डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस, इंजिनेशियस एंड सिनेंड्रस फॉर्म में। Now this slide is showing cohesion of stamen. The first picture is showing monoadelphous condition, which is the characteristic feature of Malvaceae family. Here you are seeing the hibiscus pollen tube of hibiscus, where these are the pollen anther lobes, and a small part of filament and basal part of the filament is united to form a common tube. And this second photograph is showing diadelphous condition. This is the characteristic feature of Papilionaceae family, where the 10 stamens are arranged in 2 bundles, 1 plus 9. 9 stamens are attached with each other and united with each other and form a bundle of 9 stamens. So they are showing 9 plus 1 condition. This is known as diadelphous condition. And the next flower is showing polyadelphous condition, where the stamens are arranged in many bundles, many groups, united in many bundles, or many groups. This is called as polyadelphous condition. It is generally found in Rhotaceae family. And here you are also seeing this polyadelphous condition. And this is syngenaceous condition, which is the characteristic feature of Asteraceae family, where the stem anthers are united and filaments are free. In Asteraceae family, there is 5 stamens, where the 5 filaments are free from each other and anthers are united to form a syngenaceous condition. Syngenaceous means syn means जुड़ना, यूनाइट होना, जेनेशियस मतलब जनरेटिव पार्ट, जहां पर जनरेटिव पार्ट आपस में जुड़ा हुआ हो, दैट इज सिंजेनेशियस कंडीशन. Now this photograph is showing the synandrous condition. Synandrous condition is characteristic feature of Cucurbitaceae family, where the whole stamen means androecium is completely united with each other and form a single organ. This is known as synandrous condition. Now adenation of stamens. Adenation means when the stamens are attached with the other organs of the flower. They may be attached to the petals, they may be attached to the sepals, they may be attached to the carpel, and this is called as adenation of stamens. When the stamens attached or fused with other organs of the flower is called adenation. Adenation of stamens with petals is very common character in Gamopetalous taxa. Adenation of stamen with sepal is not very common. It occurs in few families like Proteaceae family. Adenation of stamen with carpel is found in Aristolochiaceae and Asclepiadaceae family, which is termed as gynostegium, considered as advanced feature in angiosperms. तो इस तरह से आप देखते हैं एडेनेशन का मतलब होता है कि स्टेमन जब फ्लावर के दूसरे ऑर्गन से अटैच्ड होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एडेनेशन, यानी जुड़ना. और ये एडेनेशन कितने तरह से हो सकता है. स्टेमन पेटल से जुड़ा है तो एपिपेटलस कहलाएगा. स्टेमन सेपल से जुड़ा हुआ है तो एपिसेपेलस कहलाएगा. स्टेमन जब गायनेशियम से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर गायनेस्टेजियम का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि एस्क्लेपिडेसी फैमिली में और अरिस्टोलोकेसी फैमिली में देखने को मिलता है. एपिपेटलस कंडीशन जनरली गैमापेटलस टेक्सा में देखने को मिलती है. एपिसेपेलस कंडीशन बहुत रेयर कंडीशन है जो फैमिली प्रोटिएसी में पाई गई है. Now adenation of stamen. This slide is showing pictures of adenation of stamens with other organ of the flower. Here you are seeing the epipetalous condition where the filament is attached to the petals. ये आप देख रहे हैं कि लंबा फिलामेंट का बेसल पार्ट जो है पेटल से चिपका हुआ है, अटैच्ड है. तो इस प्रकार के स्टेमन्स को एपिपेटलस स्टेमन्स कहते हैं. इस डायग्राम में, इस पिक्चर में आपको और ज्यादा क्लियर हो रहा है. ये स्टेमन की फिलामेंट की रिजेस जा रही हैं, ये एपिपेटलस कंडीशन को शो कर रहा है.
यहाँ पर आप देखते हैं कि गायनोस्टेजियम फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है कि ये जो कोरोना फॉर्म हुआ है ये स्टैमेन के फिलामेंट के चौड़े चपटे हो जाने के कारण फॉर्म हुआ है, और इसके यहाँ पर टिप पर ही पॉलिनिया लगे हुए होते हैं, और ये फिलामेंटस ये जो चौड़ा चपटा स्टेमिनल स्ट्रक्चर है जिसे आप स्टेमिनल कोरोना कहते हैं, ये कार्पल की डिस्क से जुड़ा हुआ है, स्टिग्मेटिक डिस्क से जुड़ा हुआ है, गायनोस्टेजियम से जुड़ा हुआ है। और जब स्टिग्मेटिक डिस्क से जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, गायनोस्टेजियम कहते हैं। और ये स्टेमन के जो एंथर लोब्स हैं पॉलिनिया के रूप में गायनोस्टेजियल डिस्क के कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। यानी ये पूरा फिलामेंटस स्टेमन था जो कि चौड़ा चपटा कोरोना फॉर्म कर रहा है, और इसके एंथर लोब्स जो पॉलिनिया में कन्वर्ट हो गए हैं और इस डिस्क के कॉर्नर पर फ्यूज हो गए हैं। तो जब आप डिसेक्शन करते हैं तो इस डिस्क को फॉर्सेप्स से पॉइंट से पकड़कर निकालते हैं, जिससे पॉलिनिया निकलती हैं और पॉलिनिया के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस कंडीशन को गायनोस्टेजियम कहते हैं। ये एडेनेशन ऑफ स्टेमन विथ कार्पल और स्टिग्मा है। Now conclusion. Many lamina-like indefinite number of stamens spirally arranged constitute the primitive type of androecium, from which have been derived cyclic and fasciculate type. तो आप ये कह सकते हैं कि जो स्टैमन्स हैं दुनिया में एक लीफी स्ट्रक्चर के रूप में आए हैं, लीफी माइक्रोस्पोरोफिल के रूप में आए हैं, और उस माइक्रोस्पोरोफिल के डोर्सल या वेंट्रल साइड पर माइक्रोस्पोरेंजिया एम्बेडेड फॉर्म में लगे हुए थे। इनिशियली ये माइक्रोस्पोरेंजिया वॉललेस थे, और बाद में इनके वॉल का फॉर्मेशन जो है लैमाइनर टिश्यूज के ओवर ग्रोथ के कारण हुआ है। लैमाइनर टिश्यूज ही ग्रो करके चारों तरफ से माइक्रोस्पोरेंजिया को कवर कर लेते हैं, एक प्रोट्यूबरस के फॉर्म में, एक एंथर के फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस प्रकार आप कंक्लूजन में ये बता सकते हैं। फ्यू नंबर ऑफ स्टैमेंस जो है वो एक एडवांस कैरेक्टर है, यानी पहले जो स्टैमेंस आए थे वो इंडेफिनिट नंबर में थे, माइक्रोस्पोरोफिल फॉर्म में थे, उनका स्पाइरल अरेंजमेंट था। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ उनकी संख्या घटती गई, वो स्पाइरल से साइक्लिक अरेंजमेंट में आए, और उनकी संख्या जब बहुत कम हो गई तो वो सिंगल साइकिल में प्रेजेंट थे, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर के फॉर्म में थे जिसमें कि एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट का प्रॉपर डिफरेंशिएशन था। फ्री स्टेमन्स आर प्रिमिटिव स्टेमन्स। यूनाइटेड स्टेमन्स यानी एडल्फस कंडीशन, कोहिजन और एडिनेशन की जो फिनोमिना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हुई है वो एक एडवांस फीचर यानी बाद में हुई है। प्रिमिटिव कंडीशन में सारे स्टेमन्स जो थे क्या थे, फ्री थे, स्वतंत्र थे। Bilobed thecus anther, bilobed या dithecus anther are primitive. Monothecus anther are advanced. Adenate anther are more primitive than dorsifix and versatile. Most of the woody ranels show primitive lamina-like stamens. Cohesion and adhesion is advanced phenomena in stamens. And reduction of fertile tissue is also advanced phenomena in stamens, where आप देखते हैं लैमियसी फैमिली में जहाँ पर कि कनेक्टिव डाइवेरिकेटेड हो जाती है, और उसके एक टिप पर स्टेराइल लोब होता है और एक टिप पर फर्टाइल लोब होता है। तो इवोल्यूशन के दौरान ग्रेजुअली स्टेरलाइजेशन होता गया। नाउ रेफरेंसेस, तो स्टैमेंस के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म बाय ऑर्थर जे एम्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म बाय के.आर. स्पोरने, मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी बाय डॉक्टर वाई.डी. त्यागी एंड डॉक्टर एस.के. सिन्हा। और इसमें जो फोटोग्राफ्स कुछ लिए गए हैं वो गूगल सर्च के द्वारा भी, सर्च इंजन से भी कलेक्ट किए गए हैं, इसलिए मैं उन सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आपको ये सब चीज़ें जानकारी देने के लिए इतना लिटरेचर, इतने पिक्चर्स उपलब्ध कराए हैं। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या हो सकता है कि आप शॉर्ट नोट्स लिखें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रिमिटिव स्टेमन्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फोनेशन इन स्टेमन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एडेनेशन इन स्टेमन्स, write short notes on stamen and anther connections. And long answer type of questions क्या हो सकते हैं, describe the morphology of stamen in angiosperm with suitable diagrams and explain the evolution of stamen in
एंजियोस्पर्म्स। तो इस तरह से आपका जो दो तरह से मेजर क्वेश्चन बन रहा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे बन सकते हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्रिमिटिव स्टेमन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वुडी रानिल, स्टेमन्स ऑफ वुडी रानिल्स। तो इस तरह ड्रॉ द डायग्राम ऑफ primitive type of sporangia, microsporangia in stamens। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे आपके क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में बन सकते हैं, जिनको आपको डिटेल्ड स्टडी करना चाहिए। आप इसके लिए मॉर्फोलॉजी ऑफ एम्स की बुक को अपना बेस बनाया है, खासतौर से एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए एम्स की बुक्स बेहतर होगी। स्पोरने की बुक में भी आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेमन पढ़ने के लिए आपको जहाँ भी जो एग्जाम्पल मिलता है आप उसको कलेक्ट करें और अपने नोट्स में ऐड करें। Now, thank you for watching the presentation, and please please write your suggestions on comment box, like and subscribe this lecture, and put your suggestions. On the basis of your suggestion, I can present other lectures for you.